हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय बैच। आज हमारी क्लास 9 है। आज से पहले जो क्लास हुई थी वो 13 जून को हुई थी और बाकी सारी क्लासेस आपको जो यूट्यूब है उसके ऊपर मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी प्लेलिस्ट को आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। आज हमारी क्लास 9 हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हम दो मैटर लिखेंगे। सबसे पहले एक लीगल मैटर लिखेंगे 486 वर्ड का। उसको लिखने के बाद में उसको हम समझेंगे, उसके रूल्स को समझेंगे। उसके बाद में हम एक जनरल मैटर भी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीगल मैटर को 100 WPM पर लिखने वाले हैं, तो आप सभी रेडी हो जाइए 100 WPM पर लिखने के लिए। बाकी 80 WPM और 120 WPM, तो ये दोनों स्पीड पर भी आपको डिक्टेशन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर हमारा stenoarmy.com करके सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। रजिस्टर और लॉगिन आप कर लेंगे। उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मतलब सेक्शन मिल जाएगा। अभी जून चल रहा है तो जून के अंदर जितने भी डिक्टेशंस अपलोड हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा इतने सारे पहले के भी अपलोडेड हैं, वो सारे भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास होती है शाम को 6 बजे, और वो लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हो। साथ में आपको डिक्टेशन ये मिल जाते हैं और इनको आप 3 स्पीड पर ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हो, जैसे कि 110 WPM, 125 WPM, 77 WPM। अलग अलग स्पीड के ऊपर आप ये डिक्टेशंस को ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। तो 3 स्पीड के ऊपर हम क्लास में लेते हैं। अभी हम जो है वो 100 WPM पर लिखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लीगल मैटर है ये। इस लीगल मैटर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी रेडी हो जाइए। गेट रेडी, 3, 2, 1, start. It has been vehemently submitted on behalf of the applicant that she has been falsely implicated. Stop. The applicant is a student and studying in the College of Ahmednagar. Stop. She was not interested in politics. However, her father was already in politics, and as the seat of Jila Parishad was reserved for women, her father had asked her to contest the election, and therefore she had filed the nomination papers. Stop. Though she had contested the election of Jila Parishad, all the affairs of campaigning were looked after by the family members and other party workers. Stop. The FIR discloses that a dinner party was arranged by the present applicants on 12th February 2017, in which, apart from vegetarian and non-vegetarian food, liquor was also served. Stop. The informant states that his brothers and other persons were campaigning, and since the dinner party was arranged, they had gone to attend the said dinner party, but they did not return. Para. On 13th February 2017, brother-in-law of his brother gave him a phone call stating that since brothers were ill, as they were suffering from vomiting, they were taken to the civil hospital Ahmednagar. Stop. Thereafter, the informant went to the civil hospital, where he came to know that his brother expired around 8:45 p.m. and another brother expired at 11:30 p.m. Stop. He also came to know that another person from his village who had also attended the dinner party and consumed liquor and was also admitted in the hospital for vomiting, and he also expired, and then the informant lodged the report. Stop. It has been further submitted on behalf of the applicant that the applicant was not involved in the arrangement of dinner nor present when the liquor was served. Stop. In fact, at the time of incident, she was campaigning in a village which is at a distance of about 20 to 25 kilometers and would have
taken about 45 minutes to reach the place of incident. Para. The campaigning meeting attended by her has been video recorded by the team of Election Commission, which shows her presence along with her father at the meeting. Stop. The arrangement of said dinner was made and it was in the house of that candidate. Stop. The applicant is not involved in the unfortunate incident of death of people due to alleged consumption of spurious liquor. Stop. The applicant has filed nomination form to contest the election at the insistence of her father against her wish. Stop. In fact, there was no material before the authorities to invoke the provisions of the Maharashtra Control of Organized Crime Act. However, the said provisions were also invoked. Stop. The applicant had in fact filed writ petition for quashing of the proceedings arising out the same crime, and the division bench of this court had refused to exercise the writ jurisdiction, and the said writ petition came to be dismissed in view of the fact that provisions of MCOC Act were invoked. Stop. ये आपका डिक्टेशन है. 100 WPM पे हमने इसको लिखा है. 486 वर्ड्स इसके अंदर हैं. अब आप इसको जो है ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं. तीनों स्पीड के ऊपर हम सॉफ्टवेयर पर लिख चुके होंगे, पर आपको जो है 100 WPM पर मैंने अभी लिखवा दिया है. 120 पर जिसको लिखना है वो सॉफ्टवेयर से लिख सकता है. अब हम इसको जो है रूल्स को समझते हैं. इसके अंदर सबसे पहले रूल्स हम देखेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं जो कैपिटल होंगे. सबसे पहला तो अहमदनगर. इसके अंदर अहमदनगर वर्ड आया है जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस या सिटी का नाम आ जाता है. कोई स्टेट का नाम आ जाए, कोई कंट्री का नाम आ जाए, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. फिर है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. FIR को हमेशा कैपिटल लिखना है. इसके बीच में बहुत जगह आपको डॉट देखने को मिलता है, तो वो भी सही है, और ये विदाउट डॉट्स भी सही है. आप कोई भी एक जो है वो फॉलो कर सकते हो. हम जो है वो विदाउट डॉट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप विदाउट डॉट को फॉलो करेंगे. फिर है फेब्रवरी, कोई मंथ आ जाता है, मंथ का नाम फेब्रवरी, मार्च, जितने भी हैं वो सारे कैपिटल लिखे जाते हैं. फिर है सिविल हॉस्पिटल, तो कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल का नाम आ जाए तो फिर आपको कैपिटल लिखना है. सिर्फ हॉस्पिटल वर्ड आएगा तो कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर साथ में सिविल जुड़ गया है या कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल का नाम आ गया है, तब फिर आपको कैपिटल लिखने की ज़रूरत है. इलेक्शन कमीशन हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा. फिर है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट. ये कोई भी एक्ट आ जाता है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं. साथ में आपने कई बार देखा होगा एक्ट का जो है ईयर भी जुड़ा होता है. मान लेते हैं ईयर जुड़ा हुआ होता है 1992, तो उसको हम कॉमा से सेपरेट कर देते, कॉमा लगाते एक्ट के बाद और फिर आगे ईयर जोड़ते उसके अंदर. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसके अंदर तो है नहीं, तो यहाँ से हम हटा देते हैं. फिर है MCOC एक्ट. ये महाराष्ट्र कंट्रोल का ही शॉर्ट फॉर्म बना दिया, तो शॉर्ट फॉर्म को भी हमको कैपिटल लिखना है. डिवीजन बेंच. डिवीजन बेंच के साथ एक और होता है सिंगल बेंच, तो ये दोनों जो है वो हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. डिवीजन बेंच का मीनिंग क्या है? जिस कोर्ट के अंदर 2 जजेस बैठ रहे हो उसको डिवीजन बेंच कहते हैं. जिसके अंदर एक ही जज बैठता है उसको सिंगल बेंच कहते हैं. ये बेसिक सा मीनिंग है. कोर्ट वर्ड है, तो कोर्ट वर्ड आप सभी को पता होगा. कोर्ट वर्ड हमेशा कैपिटल आता है. कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एपेक्स कोर्ट हो, जितने भी कोर्ट आते हैं, कोई स्पेसिफिक स्टेट का आ गया जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, तो ये सब जो है वो कैपिटल लिखे जाते हैं. तो कैपिटल के रूल्स इतने ही हैं इस मैटर में. जितने भी कैपिटल वर्ड्स हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं. इसके अलावा कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं लिखना है. अब आते हैं पंक्चुएशन रूल्स पे. सबसे पहला मैटर के अंदर क्या सेंटेंस है? शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स हाउएवर. हाउएवर के आगे पीछे हमेशा कॉमा लगता है. अगर सेंटेंस के बीच में हाउएवर आ रहा है या देयरफॉर आएगा या देयर आफ्टर आएगा, ये कोई से भी वर्ड्स आते हैं, इसके आगे पीछे हमेशा कॉमा लगता है. दूसरा रूल, इसके अंदर अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता हाउएवर वर्ड, तो जस्ट बाद में कॉमा लगता और फिर आगे का सेंटेंस चालू होता. तो बीच में आया तो आगे पीछे लग गया. फिर हाउएवर, हर फादर वॉज ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स एंड एज द सीट ऑफ जिला परिषद वॉज रिजर्व फॉर विमेन. हर विमेन का ये EN लगाया है, प्लूरल आएगा यहाँ पे, क्योंकि
हमने क्या बात करी है, जिला परिषद की जो सीट है वो रिजर्व्ड है विमेन के लिए, एक विमेन नहीं है, बहुत सारे विमेन की बात हो रही है, इसलिए EN लगाया। हर फादर हैड आस्क्ड हर टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड देयरफॉर कॉमा। अभी मैंने बताया हाउ एवर देयरफॉर फर्दरमोर के आगे पीछे कॉमा लगता है, पर यहाँ पर क्या है, एंड आ गया देयरफॉर से पहले, तो पहले कॉमा नहीं लग रहा है, सिर्फ बाद में कॉमा लगेगा। ये रूल छोटा सा है, इसको ध्यान रखना है। सिमिलरली हाउ एवर के भी पहले एंड होता तो पहले वाला कॉमा हट जाता, सिर्फ बाद वाला ही रहता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शी हैड फाइल्ड द नॉमिनेशन पेपर्स। फिर है द FIR discloses that a dinner party was arranged by the present applicants on 12th February 2017। डेट के अंदर जब भी ईयर आता है तो ईयर जो है वो कॉमास के बीच में रहता है, ये ध्यान रखना है। इन विच अपार्ट फ्रॉम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड कॉमा लिकर, ये क्या है, ये एक सीरीज आ गई, इसके अंदर क्या हुआ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एक चीज मान ली, फिर कॉमा लगा के लिकर। अगर यहाँ पर भी एंड वर्ड आ जाता तो ये कॉमा हट जाता, पर कॉमा लगाया है, एंड वर्ड नहीं आया है, इसलिए एंड आ जाता तो कॉमा हट जाता। कॉमा लिकर वॉज ऑल्सो सर्व। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर है अदर पर्सन्स वर कैंपेनिंग एंड सिंस द डिनर पार्टी वॉज अरेंज्ड they had gone to attend the said dinner party, comma, but they did not return। बट से पहले कॉमा लगता है सेंटेंस के बीच में अगर आता है तो। एक और चीज रूल में है, बट ऑल्सो वर्ड भी आ जाता है कई बार, बट ऑल्सो के बाद सेंटेंस होता है, तब उस केस में आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, बट वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर दो सेंटेंसेस को बट वर्ड कनेक्ट कर रहा है और जो आगे का सेंटेंस है वो जरूरी नहीं है, तो फिर बट से पहले कॉमा लगेगा। अब मान लेते हैं सेंटेंस यहाँ पे भी खत्म हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर हम सेंटेंस को यहाँ खत्म कर देते तो आगे के सेंटेंस की जरूरत नहीं है, बट दे डिड नॉट रिटर्न हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी अगर सेंटेंस खत्म कर दे तो। पर हम इसके आगे ये जोड़ रहे हैं कि बट दे डिड नॉट रिटर्न, तो बट वर्ड जो जोड़ा रहा है इन दो सेंटेंसेस को, तो उससे पहले कॉमा लगाना है। बट वर्ड के जैसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट हो गया, एंड वर्ड हो गया, विच वर्ड हो गया, वाइल वर्ड हो गया, ये सारा का रूल्स जो है वो सेम ही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये दो वर्ड को कनेक्ट, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं और जो आगे वाला सेंटेंस है वो ज़रूरी नहीं है, तो उसके पहले कॉमा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारा रूल जो है इसके ऊपर क्विज है, मैंने शेयर करी थी टेलीग्राम के ऊपर, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फिर है ऑन 13 फरवरी 2017, ये ईयर आ गया तो ये कॉमास के बीच में आ गया। फिर ब्रदर इन लॉ के बीच में हाइफन आएगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये कुछ भी आएंगे, इनके बीच में हाइफन लगाना ज़रूरी है, वरना ये मिस्टेक आपकी काउंट हो जाएगी। तो ये पूरा सेंटेंस है। फिर है देयर आफ्टर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया तो कॉमा लग गया इसके बाद में। फिर द इन्फॉर्मेंट वेंट टू द सिविल हॉस्पिटल वेयर ही केम टू नो डैट हिज ब्रदर एक्सपायर्ड अराउंड 8:45 PM, कॉमा, एक डेट आ गई या फिर कोई टाइम आ गया तो टाइम के जस्ट बाद कॉमा लग जाता है। एंड अनादर ब्रदर एक्सपायर्ड एट 11:30 PM। अब PM के भी कुछ रूल्स हो गए, जैसे PM कई बार आपको P.M. ऐसे दिखता है, कई बार कैपिटल में दिखता है, कई बार स्मॉल में दिखता है, तो आपको कोई फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ कैपिटल वाला रखना है, कैपिटल विदाउट डॉट्स, ये वाला चीज़ जो लिखी हुई है इसको ऐसे ही फॉलो रखना है आपको। फिर है इनफैक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया तो कॉमा लग गया। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, एट द टाइम जब भी आएगा सेंटेंस के बीच में, स्टार्टिंग में, कहीं पर भी, तो आपको ये देखना है कि वो स्टॉप कहाँ पर ले रहा है। इसके अंदर एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, फिर आगे से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जस्ट कॉमा लगाना है आपको, ये बस इतना सा देखना है। एट द टाइम ऑफ के बाद में कहाँ पर कौन सा वर्ड, एक ही वर्ड आएगा, उसके जस्ट बाद आपको कॉमा लगा देना है। तो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट के बाद कॉमा लग गया। शी वॉज कैंपेनिंग इन अ विलेज, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लग गया क्योंकि विच वर्ड आ गया है। अभी मैंने बताया था विच वर्ड और एंड वर्ड, बट वर्ड, ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम इसके पहले कॉमा लगाते हैं। विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 to 25 किलोमीटर्स। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, पर अगर उस वर्ड के बाद का सेंटेंस जरूरी नहीं है पर फिर भी हम लिख रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वो कैंपेनिंग कर रही थी विलेज के अंदर, पर विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 20 to 25 किलोमीटर्स। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हैं कैंपेनिंग विलेज में हो रही है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने किलोमीटर है कितना नहीं, पर हमने इसको जोड़ा है तो विच वर्ड सेंटेंस का यूज़ किया है, विच वर्ड का यूज़ किया है, तो विच वर्ड से पहले कॉमा लगा देंगे। 20 to 25 किलोमीटर्स, कॉमा,
एंड वुड हैव टेकन अबाउट। अब एंड वर्ड भी सिमिलरली वही रूल फॉलो कर रहा है कि एंड वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और वो ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी हम लिख रहे हैं तो उसके पहले कॉमा लगा देंगे। तो एंड वुड हैव टेकन अबाउट 45 मिनट्स टू रीच द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। सो ये बेसिकली दो रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सेड डिनर वॉज मेड एंड इट वॉज इन द हाउस ऑफ डेट कैंडिडेट। तो ये एंड वर्ड आ गया, तो एंड वर्ड से पहले कॉमा हमने लगा दिया। फिर इनफैक्ट वापस आ गया, तो इनफैक्ट के बाद कॉमा। देयर वॉज नो मटेरियल बिफोर द अथॉरिटीज टू इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ द महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, कॉमा हाउ एवर वर्ड आ गया, तो उसके आगे पीछे कॉमा। द सेड प्रोविजंस वर ऑल्सो इन्वोक्ड। सो बेसिकली ये सारे रूल्स पंक्चुएशन के हैं, कॉमा के रूल हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल्स हैं। 8 क्या 10 मान लीजिए आप। ये 10 रूल्स हैं कॉमा के। ये 10 रूल्स आपको समझने की ज़रूरत है, और बेसिकली ये 10 रूल्स ही हैं जो हर मैटर के अंदर पूरे में यूज़ होते हैं। हर मैटर के अंदर अगर आप एक बार समझ लोगे ये 10 रूल्स को, तो फिर आपको जो है ये 10 में से अगर 8 या 6 भी याद रह जाते हैं एग्ज़ाम में, तो भी आपका जो काम है वो निकल जाएगा। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए तो आपको एक बार अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मेंशन्ड हैं, जितने भी मीनिंग आपको समझ में ना आए वो इसमें से आप देख सकते हो। अब हम लिखेंगे जनरल मैटर। ये जनरल मैटर 841 वर्ड का है, तो इसके अंदर 841 वर्ड्स हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है पूरा मैटर लिखने की, तो इसको आधा लिख सकते हो आप। आधा लिखोगे करीबन 400 वर्ड्स हो जाते हैं, 400 450, तो उतना लिख लीजिए। उसके बाद में उसको स्किप करके फिर आधा लिख लीजिए, ऐसे कर सकते हो। और जिनकी प्रैक्टिस है तो वो तो पूरा लिख ही लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सभी रेडी हो जाइए। 100 WBM पे हम लिखने वाले हैं। Get ready, 3 2 1 start. Indian food is different from the rest of the world, not only in taste but also in cooking methods. Stop. It reflects a perfect blend of various cultures and ages. Stop. Just like Indian culture, food in India has also been influenced by various civilizations which have contributed their share in its overall development and the present form. Stop. Foods of India are better known for their spiciness. Stop. Throughout India, be it North India or South India, spices are used generously in food. Stop. But one must not forget that every single spice used in Indian dishes carries some or the other nutritional as well as medicinal properties. Stop. Kashmiri cuisines reflect strong Central Asian influences. Stop. In Kashmir, mostly all the dishes are prepared around the main course of rice found abundantly in the beautiful valley. Stop. But on the other hand, states like the Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh show high consumption of staple food. Stop. Again, these staple foods are prepared with a variety of flours such as wheat, rice, etc. Para. In Western India, the desert cuisine is famous for its unique taste and varieties of food. Stop. Rajasthan and Gujarat are the states that represent the desert flavor of Indian food. Stop. Here, an immense variety of pickles is used that simply substitutes the relative lack of fresh vegetables in these areas. Stop. In the states like Maharashtra, the food is usually a mix of both north as well as south cooking styles. Stop. Here, people use both rice and wheat with the same interest. Stop. Along the coastline of Mumbai, a wide variety of fishes is available. Stop. Some of the delicious preparations include dishes like the Bombay prawns. Stop. In Goa, that is further down towards south, one can notice Portuguese influence
in the cooking style as well as in the dishes. Stop. In eastern India, the Bengali and Assamese styles of cooking are noticeable. Stop. The staple food of Bengalis is the yummy combination of rice and fish. Stop. Usually, the Bengalis love eating varieties of fishes. Stop. In southern India, the states make great use of spices, fishes, and coconuts as most of them have coastal kitchens. Stop. In the foods of Tamil Nadu, use of tamarind is frequently made in order to impart sourness to the dishes. Stop. It simply distinguishes Tamil food from other cuisines. Stop. The cooking style of Andhra Pradesh is supposed to make excessive use of chilies, which is obviously to improve the taste of the dishes. Para. At the same time, local food has taken complex regional recipes and modified them for ease of industrial production, leading to a packaged food boom in India. Stop. The Indian food market of $182 billion is believed to be growing at a rapid clip of 13%. Stop. Indian pre-cooked packaged foods empires such as MTR, Haldirams, etc. have gone global, available wherever Indians now live, leading a quiet yet unrecognized revolution in eating habits. Stop. Formerly, the focus was upon rural, natural, fresh, and prepared on site food. Stop. Now, there is a shift in emphasis to industrialized and processed food. Stop. These developments are partially re engineering local and caste based specialties for mass production, distribution, and consumption, changing past notions of what is traditional or valued. Stop. One of the most distinctive features of traditional Indian food is spices. Stop. Indian cuisines is known for its bold and complex flavors due to the frequent use of spices such as turmeric, cumin, coriander, and black pepper. Stop. These spices add a one of a kind taste and have health benefits, mainly anti-inflammatory and antioxidant. Para. Another important aspect of Indian food culture is the use of herbs. Stop. Fresh herbs such as mint and parsley are commonly used in Indian dishes to add a burst of flavor and freshness. Stop. These herbs are also believed to have medicinal properties and are often used in Ayurvedic medicine. Stop. The use of legumes such as lentils, chickpeas, and kidney beans is also a staple of Indian cuisine. Stop. These ingredients are a great source of protein and fiber, and they are often used in vegetarian and vegan dishes. Stop. Food holds a paramount position in Indian culture, going beyond mere sustenance. Stop. It is intricately into the social fabric, religious practices, and celebrations of the country. Stop. The importance of food in Indian culture stems from its ability to bring people together, forge connections, and serve as a medium for expressing love and hospitality. Para. In Indian households, meal times are communal affairs where family members gather to share not just food but also stories, laughter, and moments of togetherness. Stop. The act of cooking and sharing a meal is seen as an expression of care
and affection. Stop. Elders pass down recipes through generations, preserving culinary traditions and familial bonds. Stop. Religious and cultural practices also revolve around food in India. Stop. Temples offer prasad, food offered to deities and then distributed among devotees as a blessed offering. Stop. Fasting is a common practice observed with devotion and discipline and followed by feasting on special dishes. Stop. Festivals like Diwali, Eid, and Christmas are celebrated with elaborate spreads of traditional delicacies symbolizing the richness of Indian culinary heritage. Stop. Indian cuisine's regional diversity is an outstanding aspect of its cultural significance. Stop. So, ये आपका डिक्टेशन है इंडियन क्यूजीन के ऊपर। सब कुछ इसमें आ गए हैं वर्ड्स, तो काफ़ी अच्छा मैटर है। जो बच्चे जनरल मैटर या एसएससी आरएसएसएमबी जी जो भी मैटर्स की प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम की, जो 10 मिनट के होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा मैटर है। अब आप इसको ट्रांसक्राइब करिए। तीनों स्पीड के ऊपर आपको ये सॉफ्टवेयर पे मिल जाएगा। जिसको सॉफ्टवेयर परचेज करना है उसको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे रखा है मैंने, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर कैसे परचेज करना है उसके बारे में तो वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा जो आज की क्लास है वो ख़त्म हो गई है, यहाँ पर हम इसको टिक कर देते हैं। ये जो टाइम टेबल है वो आपको डाउनलोड करना हो तो ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है मैंने। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 42% क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ क्लासेस और बाकी रह गई हैं। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई डाउट है या क्वेरी है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।